None for applicant. In the absence of counsel for applicant, the matter is ready subject. Just after a week. First bail application under section 439 and main offenses 02 of the IPC. How from the first अभी पहले कुछ में डिसाइड हुआ इसमें पहले कुछ और डिसाइड हुए 3 बेल ग्रांट हुई है। इसमें जो है पेज नंबर 12 देखें। पेज नंबर 12 में ये इसको फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया था, इसने एंटीसिपेटरी लगाई, उसकी एंटीसिपेटरी डिसमिस हो गई तो उसको क्या ब्रेन में झटके लग गया तो पागल जैसा हो गया रहा, तो इसके ट्रीटमेंट चला। पेज नंबर 12 में इसमें हेमरेज का जिक्र दिया गया है ब्लॉकेज में। फिर उसको हमने सरेंडर करवाया। इनके द्वारा जो है सरेंडर करा, मतलब पुलिस के समक्ष सरेंडर कराया, कोई ऑप्शन नहीं बचा, एंटीसिपेटरी है। जबकि उसके बाद पेज नंबर 15 में जो है हमने एक WP पेश किया था। उसमें पेज नंबर 15 में रीड कर रहा हूँ मैडम। On the other hand, investigating officer has assured this court that whatever material is produced by the family member of the accused who is absconding is being taken note of the during the course of investigation. The fair investigation will be done in the matter. He submit that even after taking cognizance, prima facie investigation officer and his team is of the opinion that the presence of the present applicant would be on a spot, but still they have not come on the final conclusion. In the existing circumstances, this court cannot direct for a parallel inquiry in the matter when investigation is still going on. The investigation officer is instructed and is instructed to make fair and proper investigation without any pressure and fear. And if, in the opinion of the investigation officer, the son of the petitioner cannot be an accused in the matter, then they make the proper step before filing the challan. कौन सा ऑर्डर पढ़ा है आपने? ये पेज नंबर 15 पे 15। अब इसमें सेकंड 15 में ऐसा कुछ नहीं लिखा। 1/4 पर एनेक्जर A3 एनेक्जर A3 वो तो 16 है जी। अब इसमें ये हुआ कि हमको जो है हम स्पॉट पे लिखी है सब बातें। उसके पहले पेज नंबर 2 में A3 के पेज नंबर 2 पहले एक ऑर्डर है लॉर्डशिप MCR की WP नंबर 12265/23। फिर से पढ़िए, आप क्या पढ़ रहे थे? ये रिलेवेंट पैरा। हाँ। On the other hand, investigation officer has assured this court that whatever material is produced by the family member of the accused who is absconding is being taken note of the ऑर्डर की का नंबर पढ़िए। आपका A3 गलत, आपका नंबर गलत, आप ऑर्डर का नंबर पढ़िए। ऑर्डर नंबर है WP नंबर 12265, पेज नंबर 16 में 858 है। वो मैडम वो रिट अपील है। उसके तो पहले वाला सही पेज तो पढ़िए ना, आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वो पेज तो वहाँ मुझे वहां तक तो आपको लेकर के दोनों A3 हैं। दोनों ही A3 हैं जी। Court cannot direct for a parallel inquiry. In the matter when investigation is still going on, the investigation officer is instructed to make a fair and proper investigation without any pressure and fear. That if, in the opinion of the investigation officer, the son of the petitioner cannot be accused in the matter, then they may take appropriate step for filing the challan. इसमें TI साहब को हमने एप्लीकेशन दिया और हमने WP बताया कि हम स्पॉट पे नहीं थे। इसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करी, तो हमने इसके बाद जो है पेज नंबर 6 के अनुसार रिट अपील फाइल किया। रिट अपील डिवीजन बेंच के द्वारा जो है रिलेवेंट पैरा में रीड कर रहा हूँ, लास्ट पैरा। द लंडन गवर्नमेंट एडवोकेट सबमिट दैट द ड्यूटी ऑफ द investigation officer is to collect all information in support of the prosecution. There is no hesitation to receive any material or information from the petitioner. But if at all the petitioner wants to furnish any material, investigation officer would take that into consideration while preparing the material for the investigation. His submission is placed on record. अब हमने सारे वीडियो रिकॉर्ड के हम स्पॉट पे नहीं सब पेश किया, लेकिन पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन नहीं किया। मैडम काइंडली सी, अब मैं घटना की जो FIR है, अब मैं FIR रीड कर रहा हूँ। मैं ग्राम खैरी में परिवार सहित रहता हूं तथा कोरोना पेट्रोल पंप के पास नाश्ता मिठाई के होटल चलाता हूं। आज दिनांक 11/5/23 के दिनांक में करीब 1:30 बजे दोपहर की बात है। मैं तथा मेरा भाई शुभम केवट ऋषि केवट कोरोना नाला के आगे रेलवे लाइन के पास नारायण पटेल के खेत के पास खड़े होकर आपस में बात कर रहे थे। तभी पुरानी बुराई
बस ऋषि नगर में रहने वाले बिट्टू पटेल, नारायण पटेल, करण पटेल एवं गोलू विश्वकर्मा, हम गोलू विश्वकर्मा है, और जिसमें बिट्टू पटेल हाथ में फरसा लिया था, गोलू विश्वकर्मा हाथ में खाली तलवार लिया था, हमको तलवार लेना बताया गया। तभी एक राय होकर मुझे तथा मेरे भाई शुभम माँ बहन की गंदी गंदी गाली देते हुए सुनने में बुरी लगी। मेरे भाई शुभम जो मृतक है मैडम ने गाली देने से मना किया तो नारायण पटेल, करण पटेल चिल्ला कर बोले कि मारो। पटेल ने फरसा से मेरे भाई शुभम की हत्या करने की नियत से गर्दन पर वार किया, जिससे गर्दन से कटकर खून निकलने लगा। वह जमीन पर गिर पड़ा, बचाव के लिए दौड़ा। इनको जो मृतक को मारने पे हमारा कोई रोल नहीं है। गोलू विश्वकर्मा ने मेरे सिर में तलवार से मारकर चोट पहुंचाई। अब जो एफआईआर करता है, जो उसका भाई है, उसके द्वारा ये कहा जाता है कि गोलू विश्वकर्मा जो प्रेजेंट एप्लीकेंट है उसके द्वारा मुझे तलवार से मारी गई। वेयर इन एमएलसी रिपोर्ट उसको जो तलवार की कोई चोट नहीं है, हार्ड एंड ब्लंट ऑब्जेक्ट से सिंपल चोट उसको बताया गया है। नाम की वो कुछ अब इसमें मैडम मेरा निवेदन है, अरेस्ट हमको पुलिस ने अरेस्ट किया, हमसे कोई जब्ती नहीं हुई इसमें इस केस में। और इसमें जो सेकेंड मेन का अक्यूज्ड है करण पटेल, जिसने मृतक को मारा है, A4 के अनुसार 22 के से बेल ग्रांट हुआ है। दो अन्य को अक्यूज्ड है, उनको भी जो है माननीय न्यायालय के बेल ग्रांट दिया गया। मैडम हमारे ऊपर बहुत ज्यादा 323 का बनता है, ना हमने मृतक को मारा, ना हमसे कोई जब्ती है, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ हमारी इनसे दुश्मनी चल रही थी, हमको इसमें सौरभ पटेल ने इम्प्लीकेट किया। बस उनका कहना तलवार मारा, तलवार मारने देता है, जबकि इनने करण पटेल के बारे में A4-19 में ज्योति पटेल, सुभी पटेल जिन्होंने पार्टिसिपेट किया मारने पीटने में, इनको बेल ग्रांट हुआ। फिर उसमें करण पटेल जिसने मृतक को मारपीट करी, डंडा लाठी घुसा से मारपीट किया, उसको भी बेल ग्रांट किया। और एज पर एमएलसी रिपोर्ट जो हमको बताया गया तलवार से मारना, ना हमसे तलवार जब्ती हुआ, ना ही हमको जो है कोई डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि कोई तलवार जिसको चोट है। जी बताइए। इसमें डॉक्टर साहब जो है डेट ऑफ इंसिडेंट है 11/5/2023 और ये अरेस्ट हुए 11/3/2024 को। 11/3/2023 है 24 नहीं, इंसिडेंट इंसिडेंट 11/5/2023 की 11/5। और असेंबली FIR है। और आपकी इनकी प्रेजेंट एप्लीकेंट की अरेस्टिंग है 11/3/2023 24 आफ्टर 10 month ऑफ इंसिडेंट। अब इसमें इनका जो एज पर FIR में नाम है कि इनके द्वारा इंजर्ड जो मृतक का भाई सौरभ है उसके ऊपर तलवार से हमला किया, जिससे उसको 5 चोटें आई हैं। और इसमें अदर जो 3 आई विटनेसेस है डॉक्टर साहब, नेमली अमित पांडे, छोटू, विजय सिंह, तीनों ने घटना में इनकी उपस्थिति दर्ज कराई है। बताया है कि इन्होंने इनका एक्टिव पार्टिसिपेट था, इन्होंने इंजर्ड सौरभ सिंह के साथ मारपीट की है। जो MLC है डॉक्टर साहब जो इनकी सौरभ की, उसमें हार्ड एंड ब्लंट आया है। इनको 2 लेसरेटेड बाउंड है और एक कंट्यूजन है, एक मल्टीप्लाई एवरेजेंस है और 2 लेसरेटेड बाउंड। तो फिर डॉक्टर ने इनको वो किया है। अब जो अदर आई विटनेसेस है डॉक्टर, उनके स्टेटमेंट में देखें इनकी उपस्थिति है और इनके अगेंस्ट में 5 केसेस का क्रिमिनल पास्ट है। इंजर्ड का स्टेटमेंट में पढ़ दे रहा हूं, इंजर्ड और आई विटनेस का। सौरभ कीवर्ड, मैं उपरोक्त पते पर रहता हूं। उनके पार्ट के पढ़िए, इनके पार्ट का है कि इनने इनके पार्ट का पढ़िए और सारा ना पढ़िए। इनके पार्ट का ये है कि इनने सर में तलवार से मारपीट की, तलवार और बकानुमा उससे मारपीट की सौरभ के साथ, इंजर्ड के साथ। और शुभम केवट की मृत्यु हो गई है। एक अदर एक्यूज नारायण सिंह एब्सकॉन्ड है। जबकि डॉक्टर के हिसाब से तलवार कोई चोट नहीं है। और जो करण पटेल